دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قیادت میں معرکہ حق میں کامیابی ملی۔ معرکہ حق میں بھارت کو شکست فاش دی۔ ٹرمپ نے جنگ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 4 روزہ جنگ میں پاکستان نے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چترال میں تقریب سے خطاب۔ وفاق دہشت گردی کے خاتمے کے لیے KP حکومت سے تعاون کرے گا۔ سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر فون کر کے مبارکباد دی۔ کہا سہیل افریدی کو مل کر دہشت گردی اور برہمنی کا مقابلہ کریں گے۔ ہمیں امن اور اتحاد کا ساتھ دینا ہے، مل کر سیاست کرنی چاہیے۔ بولے چترال کے عوام کے لیے گیس پلانٹ لگا کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا پر چترال میں ہسپتال بھی بنانے کا اعلان۔ پاکستان اور افغانستان کا جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق۔ جنگ بندی کے نفاذ کے قواعد و ضوابط 6 نومبر سے استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں طے کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ طارر کی تصدیق۔ کہا کہ معاہدہ طے پا گیا، امید ہے اب دہشت گرد کارروائیاں نہیں ہوں گی۔ استنبول مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ بھی جاری۔ ترک وزارت خارجہ کے مطابق فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا۔ جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے نگرانی اور تصدیق کا مشترکہ نظام تشکیل دینے پر بھی اتفاق۔ جو خلاف ورزی کرے گا اس کو جرمانہ ہوگا۔ قطر کا بھی مشترکہ اعلامیے کا خیر مقدم۔ وفاقی وزیر اطاولہ طارر نے کہا کہ دنیا کو پتہ ہے پاکستان پر حملے ہو رہے تھے۔ جنگ بندی میں افغان طالبان کی جانب سے فتنہ الخارج کے خلاف کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کر دے۔ کابل کو پاکستان میں امن کی ضمانت دینا ہوگی۔ افغانستان کی سرزمین سے دراندازی مکمل بند ہونی چاہیے۔ دہشت گردی پر پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ثالث ہمارے مفادات کو مکمل دیکھ بھال کریں گے۔ دہشت گردی کی روک کیے بغیر 2 ہمسایوں کے تعلقات بہتری کی گنجائش نہیں ہے۔ TTP ہو یا BLA ہو، پاکستان میں دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت آہستہ آہستہ تنہائی کا شکار ہو رہی ہے۔ یہ ملک نیازی لا کے تحت نہیں چل سکتا۔ پاکستان نے امریکہ بھارت دفاعی معاہدے کا نوٹس لیا ہے۔ بھارتی مشقوں پر مسلح افواج نظر رکھے ہوئے ہے، کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے۔ معرکہ حق میں تباہ شدہ طیاروں کی تعداد بھارت سے پوچھنی چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتا۔ توقع ہے افغانستان اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان نے تعمیری اور مثبت انداز کے ساتھ مذاکرات میں شرکت کی۔ کئی بار فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کے بارے میں شواہد فراہم کیے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے پرامن، خوشحال اور علاقائی منسلک افغانستان کا حامی ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ کشمیر کے وزیر اعظم کا اعلان آزاد کشمیر میں ہی ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا میڈیا سے گفتگو۔ کہا انتخابات سے قبل کا وقت پیپلز پارٹی کے لیے ایک امتحان ہوگا۔ آزاد کشمیر کے پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی جیت کو بدلا گیا۔ ایک سیاسی سازش کے ذریعے کشمیر میں خلا پیدا کیا گیا۔ کشمیری عوام سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ آپ کی نمائندگی پوری دنیا میں کرتا رہوں گا۔ خیبر پختونخوا کے نئے کپتان سہیل افریدی نے اپنی ٹیم منتخب کر لی۔ 13 رکنی اسکواڈ میں 10 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون شامل۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے حلف لیا۔ کابینہ میں 10 وزیر، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی شامل۔ سابق مشیر خزانہ مزمل اسلم، مینا خان، فضل شکور، فیصل ترکئی، اسد قیصر کے بھائی عاقب اللہ نے حلف اٹھایا۔ شفیع جان، خلیق الرحمان، ڈاکٹر امجد، ریاض خان، فخر جہاں، تاج محمد بھی کابینہ کا حصہ ہیں۔ مزمل اسلم اور تاج محمد کی مشیر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی ملاقات۔ صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور عوامی فلاحی منصوبوں سمیت دیگر چیزوں پر غور کیا گیا۔ NFC ایوارڈ میں صوبے کے حقوق سے متعلق بھی مشاورت کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں متحد ہو کر وفاق سے NFC ایوارڈ سمیت صوبے کے حقوق کے لیے کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صوبے اور اپنی عوام کے حقوق کے لیے ہر فورم پر مشترکہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ متحد ہو کر صوبے کو ترقی یافتہ اور پرامن صوبہ بنائیں گے۔
पंजाब में पार्टी अहदों और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला की तब्दीली पर पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। पार्टी रहनुमाओं की सोशल मीडिया फोरम्स पर एक दूसरे पर तनकीद। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई की जानिब से मेरी तारीफ बाज़ लोगों के लिए वबाल जहां बन गई है। बाज़ दोस्तों और खुद साख्ता दुश्मनों को बानी के मुझ पर एतमाद से मुश्किल दरपेश है। बानी ने जब सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नामजद किया तो बाज़ को सांप सूंघ गया। आलिया हमजा ने खुद अहमद चट्टा को ओहदे से हटाया। पॉलिटिकल और कोर कमेटी की रुदात लीक हो रही है। कौन करता है, जानने वाले जानते हैं। शाह महमूद कुरैशी से साबिक पीटीआई रहनुमाओं की लाहौर में मुलाकात। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने मुलाकात की। PKLI में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। शाह महमूद कुरैशी पित्ते में पथरी के मर्ज के बायस PKLI में ज़ेरे इलाज है। पंजाब असम्बली मकामी हुकूमतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मंजूर। पंजाब हुकूमत की मकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 27वीं आइनी तरमीम की हिमायत। करारदाद में आइन के आर्टिकल 144A में तरमीम की सिफारिश। आइन में मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमत के असर से आज़ाद करने का मुतालबा। सूबाई असम्बली की मुतफ़िका करारदाद विफाक को भिजवा दी। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम करनी पड़ती है तो फौरी की जाए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात हों। कोई सियासी जमात मकामी हुकूमत की मुद्दत कम नहीं कर सकेगी। इख्तियार पार्लियामेंट से बेहतर है कि पार्लियामेंट हो ही ना। सूबों के मामले पर देखना है कि क्या उनको बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। MQM पाकिस्तान भी 27वीं आइनी तरमीम के लिए मुतहर्रिक वसी तर इत्तफाक राय के लिए हम ख्याल जमातों से राब्ते का फैसला। MQM मुकामी हुकूमतों के मालियाती अमूर और दीगर शोबों से मुताल्लिक आइनी तरमीम पर बात करेगी। मुजव्विज़ा आइनी तरमीम के लिए पार्लिमानी, सियासी और अवामी सतह पर मुहिम चलाई जाएगी। 8 नवंबर को सुरजानी टाउन में जलसे की तैयारियां भी जारी। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि सुरजानी जलसे में 27वीं आइनी तरमीम पर बात करेंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। मुकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने हलकाबंदियों के लिए 2.5 माह की मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई चीफ सेक्रेटरी की जानिब से पेश करदा टाइमलाइन की मंजूरी दे दी। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके 10 जनवरी 2026 तक मुसद्दिका नक्शे मांग लिए। इलेक्शन कमीशन इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। इंतखाबात बरवक्त होंगे। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से मज़ीद वक्त मांगा था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कैनेडिया मनसब अनीता आनंद से टेलीफोनिक राबिता। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ज़राअत और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तफसीली तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी मंडी में किनोला बरामदात की सहूलत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने और करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान के साथ खड़े जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पर कड़ी तनकीद। मुशतरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मन चांसलर को मुखातिब करते हुए कहा कि इसराइल ने गजा पर फिर बॉम्ब बरसाए, निहत्ते लोगों का कत्लेआम किया। क्या जर्मनी को नजर नहीं आता? इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है। हमास के पास बॉम्ब है, ना एटमी हथियार, लेकिन इसराइल के पास ये सब कुछ है जिसका वो इस्तेमाल करके गजा में हमले कर रहा है। क्या जर्मन चांसलर ये सब कुछ नहीं देख पा रहे? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका को इब्तदा में ही मुश्किलात का सामना। 8 खिलाड़ी 83 स्कोर पर पवेलियन लौट गए। रिजा हेंड्रिक 0, डिकॉक और टोनी ने सिर्फ 7 रन्स बनाए। मैथ्यू भी 5 रन्स बना सके। सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जिसकी मलकियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया।
पंजाब में शहरियों के मलकीती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑर्डिनेंस नाफिज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ कायम, हर कब्जा केस का फैसला 90 दिन में होगा। अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। खसूसी ट्रिब्यूनल भी 90 दिन में फैसला करने का पाबंद होगा। फैसले के बाद ज़मीन 24 घंटे में वागुज़ार करवाई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियाँ 30 दिन में फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। कहा, पंजाब में अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। गरीब की ज़मीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। सिंध हुकूमत का गंदम की खुद कफालत का मिशन, वज़ीर आला सिंध की सरबराही में गंदम के आबादकारों के सपोर्ट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह की छोटे काश्तकारों को फौरी माली इमदाद की रकम मुंतकिल करने की हिदायत। कहा, सिंध में इस साल 22 लाख एकड़ पर गंदम काश्त की जाएगी। सिंध बैंक के पास 4 लाख हारी कार्ड्स आ गए हैं। गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब का पैकेज मंजूर किया। 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज़ायद उम्मीदवार अहल करार पा चुके। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर मबनी भर्तियों के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। पोर्टल में ग्रेड 5 से 15 तक की सरकारी असामियों, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मुलाजमतों के अलावा निजी शोबे के मौके भी शामिल हैं। पूरे निज़ाम की निगरानी शफाफ अंदाज में की जा रही है। तमाम रिकॉर्ड ऑडिट के काबिल है और हर भर्ती का अमल डिजिटल ट्रेस के तहत महफूज रहता है। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने मेरिट, शफाफियत और नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल पर कोई समझौता किया ना ही करेगी। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जदीद ई चलान निज़ाम में तेजी। सिर्फ 4 दिन के दौरान शहरियों को 18,733 इलेक्ट्रॉनिक ई चलान जारी किए गए, जिनकी मजमूई मालियत 10 करोड़ रुपए से जायद है। नए निज़ाम के तहत 24 घंटों में मजीद 5,791 ई चलान किए गए। सबसे ज्यादा 3,546 चलान सीट बेल्ट ना पहनने पर किए गए। 1,555 मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट ना पहनने पर जुर्माने किए गए। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं ने स्मोक की शिद्दत में इजाफा कर दिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर मौजूद। फ़ज़ा में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 443 तक पहुँच गया। फैसलाबाद, कसूर, गुजरांवाला और मुल्तान में भी स्मोक का राज। तिबी माहिरीन का शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा, मास्क इस्तेमाल करने की भी हिदायत। एटमी तजर्बात शुरू करने के ऐलान पर रूस का शदीद रद्द-ए-अमल। अमेरिका के जवाब में एटमी तजर्बात का इंदिया दे दिया। खबरदार किया, अगर अमेरिका ने आलमी पाबंदी को तोड़ा तो रूस भी जवाबी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगा। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने कहा कि एटमी हथियारों से लेस गुंडा दोबारा एटमी तजर्बात करने जा रहा है। अमेरिका खुद जौहरी तजर्बात करके दूसरों के पुरअमन प्रोग्राम को निशाना बनाता है। एटमी तजर्बात की बहाली गैर जिम्मेदाराना इकदाम है जिसने आलमी अमन और सलामती को संगीन खतरे में डाल दिया है।